Hello students, Chanakya Academy's online classes. This is 12th English medium, subject English, chapter number 2, Lost Spring from Flamingo. This is our main book. Lost Spring is written by Anis Jung, and this is stories of stolen childhood. Okay, it is related to childhood. Okay, first about author Anis Jung. 1964 birth year उनका, was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anis Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad, and has authored several books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here, she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. Okay, so author Anis Jung, born 1964 में, वेयर रोकेला, एंड उनका जो चाइल्डहुड कहाँ हुआ था, हैदराबाद. ओके, एजुकेशन, शी रिसीव्ड एजुकेशन इन हैदराबाद एंड ऑल्सो इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बोथ प्लेस. बाद में वहाँ मूव हुए थे. हर पेरेंट्स बोथ आर राइटर्स, मदर एंड फादर बोथ आर राइटर्स. Anis Jung began her career as a writer in India. इंडिया में उन्होंने करियर स्टार्ट किया था. She has been an editor and columnist for major newspaper के columnist and editors रह चुके थे. And abroad also, she has authored several books. उन्होंने कुछ बुक भी लिखी है. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring. उनकी बुक में से ही एक ये चैप्टर लिया गया है हमारा, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Okay, childhood की स्टोरी है. Here she analyzes the grinding poverty in tradition. या वो क्या है, खास करके इस पॉवर्टी और जो ट्रेडिशन है जो गांव में, उससे रिलेटेड है, जो उनके चाइल्डहुड के दौरान हुई थी. विच कंडेम टू दिस चिल्ड्रन ऑफ लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन. ये जो चिल्ड्रन को जिनकी लाइफ एक्सप्लोटेशन से भरी हुई है, उनकी एक ये स्टोरी है. ओके, सम वर्ड्स आर गिवन, यू हैव टू फाइंड इट्स मीनिंग एज योर idioms एंड phrases. जो एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं idioms एंड phrases, ये वहाँ से आ सकते हैं. लुकिंग फॉर, इन सर्च ऑफ समथिंग. स्लोक द डेलाइट आवर्स मीन्स बहुत टाइम पास करना. रूफ ओवर हिज हेड मीन्स लाइक कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात हो, चिंतित हो. Perpetual state of poverty means life full of poverty. Dark hunterments means darkness. Impose the baggage on the child means कोई भी child पे जानबूझ के ये भीख मांगवाना. Okay, now start our chapter. Sometimes I find a rupee in the garbage. जो चाइल्डहुड में से उनकी जो है बात, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज. शी सेड कि कुछ टाइम पे मुझे गार्बेज में से रुपीज़ मिलते थे, पैसे मिलते थे. वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that is why they left, looking for gold in the big city where he now lives. Okay. Why do you do this? आप ये करते क्यों हो? आई आस्क साहिब जो एक कैरेक्टर, आई मीन्स नरेटर, उनसे पूछते थे आप ये करते क्यों हो. Whom I encounter every morning scrounging the gold in the garbage dumps of my neighborhood means
ये एनकाउंटर मीन्स दोनों के बीच ये जो बातचीत थी, जो एवरी मॉर्निंग ये होता था, आप ये काम क्यों करते हो, फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, जो गार्बेज होता था वहाँ से गोल्ड निकालना, डम्स ऑफ माइन्यूट, जहाँ नियर बाय नेबरहुड में ही उनके यहाँ एक ऐसा गार्बेज में से गोल्ड निकालने का काम हो रहा था। तो वो पूछता आप करते क्यों हो? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर बहुत साल से छोड़ चुके थे। सेट अमिज द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और कहाँ सेट हुए थे? जो ग्रीन फील्ड्स खेत थे ढाका के, वहाँ सेट हुए थे। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, और उनका जो घर था अब दूर है लेकिन उनकी मेमोरी से कभी नहीं गया था, माइंड में ऑलवेज ही रिमेंबर ऑलवेज हिज होम। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, और उनका जो घर था वो एक स्टॉर्म्स, ज़्यादातर स्टॉर्म्स आते थे। सो इन मैनी स्टॉर्म्स देयर होम स्वेप्ट अवे इन देयर फील्ड्स एंड होम्स ऑल्सो, सब कुछ तबाह हो गया था। हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माता ने बोला था कि हमारा जो भी फील्ड हमारा घर था सबको तबाह हो गया था, इसलिए हम यहाँ ढाका में आए और ये गोल्ड गार्बेज है वहाँ से गोल्ड निकालने का काम करते। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट, और इसलिए उन्होंने ये छोड़ दिया था। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही, अब इसलिए यहाँ रह रहे हैं कि वहाँ से सब कुछ छोड़ के वो कुछ काम के लिए, गोल्ड के लिए वहाँ आए थे, इसलिए वो यहाँ आए थे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स, और ये जस्ट जब 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 नरेटर ने क्वेश्चन पूछा है वाई व्हाट डू यू डू दिस, वाई डू यू डू दिस, आप क्यों करते हो? एंड ही सेड, ही मटर्ड मीन्स धीरे से बोले, लुकिंग अवे, थोड़ा दूर नज़र हटा के बोले, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ नहीं है इसके अलावा। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, मीन्स जैसे ही वो पूछा तो नरेटर सेड कि गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, पढ़ने जाओ। रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और उनको तुरंत रियलाइज़ हुआ, तुरंत, कि ये मैंने जो बोला वो कितना डीप थॉट होगा ये, और एडवाइस कितनी अच्छी साउंड करेगी, थोड़ी सी रियलाइज हुआ उनको। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, एंड ही सेड, मेरे नेबरहुड नज़दीक में कोई स्कूल ही नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, क्यारे बनाओ सॉरी कब बनाएंगे? देन आई विल गो, तब मैं जाऊँगा, जब कोई बनाएगा तब मैं जाऊँगा। If I start a school, will you come? And a narrator said, a narrator asked, if I will start a school, will you come? आप आओगे अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ तो? आप जोकिंग, थोड़ी सी आप जोक करते हो, उससे कैसे मजा कर, मैं स्कूल स्टार्ट करूँ तो आप पढ़ने आओगे? एंड ही सेज यस, स्माइलिंग ब्रॉडली, बहुत अच्छे, बहुत हंसी आई उसको, और बोला यस आई विल कम श्योर। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? And after a few days later, narrator said, I saw him running to up me. मेरे पास दौड़ता हुआ आया और said, Is your school ready? आपकी स्कूल तैयार हो गई? It takes longer to build a school. And narrator said कि it takes longer to build a, कि एक स्कूल बनाने में बहुत टाइम लगता है। Embarrassed at having made a promise that was not meant. एम्बेरसमेंट उनको फील हुआ था उस टाइम पे कि मैंने कुछ प्रॉमिस किया था और वो बिना मतलब की बात हो गई थी, जस्ट मैं जोकिंग कर रही थी और ये सच मान रहा था। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. मीन्स ये जो प्रॉमिस उन्होंने किया था कि उनका जैसा जो उनके एवरी कॉर्नर ऑफ हिज मीन्स उनके माइंड में घूम रहा था कि ये उसके लिए क्या किया जाए, ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, और उनका जो खराब उनकी जो दुनिया है उसको चेंज किया कैसे जाए। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, मीन्स आफ्टर सब मंथ्स एक दूसरे से जानने लगे थे, तब नाम पूछा था और उसने नाम क्या बोला था, उसका साहिब ए आलम, पूरा नाम उसने बोला, मेरा नाम साहिब ए आलम। ही अनाउंसेस, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, एंड ही डजंट नो कि उसका नाम का मतलब क्या होता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो जानता था उसका मीनिंग क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब ए आलम? साहिब ए आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का देवता, भगवान। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, एंड इफ़ ही नोज दैट, तो वो भी उसके ये बिलीव करने में भी टाइम लगता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
unaware of what his name represents, he roamed the streets with his friend. मीन्स उसका नाम का उसे अनअवेयर ऑफ व्हाट ही नेम, उसका नाम क्या प्रेजेंट करता है उसके बारे बिना सोचे बगैर, उसे पता ही नहीं है. ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज, वो उसके फ्रेंड के साथ पूरे दिन स्ट्रीट्स में घूमता रहता था. An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. मीन्स वो उनके फ्रेंड्स है. कैसा थे फ्रेंड्स? आर्मी ऑफ बेयरफुट मीन्स जो पैर ओपन है, जो कि न कोई शूज़ है ना कुछ पहना नहीं है, ऐसे बेयरफुट वाले जो ऐसे घूमते बॉयज़ थे, उनकी आर्मी एक ट्रूप था. वो अपीयर लाइक मॉर्निंग, जैसे मॉर्निंग होते सारे आ जाते थे, लाइक बर्ड्स से वैसे ही आ जाते थे. एंड देन डिसअपीयर एट नून, और जैसे ही नून होता था वो चले जाते थे. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम. बहुत मंथ हुए थे और मैं धीरे धीरे सबको पहचानने लगे. वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स? आई आस्क वन ऑफ देम, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल? आप चप्पल क्यों नहीं पहनते? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली. वो बच्चा बोला कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, कि मेरी मदर जो हमारी शेल्फ पे है वो नीचे नहीं उतारने देती, हमें नहीं देती वो. इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो ऑफ देम ऑफ. एड्स मदर हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच. मीन्स इवन इफ शी डिड, अगर वो शेल्फ से उसे उनको देती, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो भी वो बच्चे जो थे वो उसे फेंक देते थे. एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज, और एक बच्चा उनमें से जो शूज़ पहने हुआ था वो बोला कि उससे मैच नहीं होते थे, इसलिए वो जो अगर उसकी मदर उसे दे दी वो भी फेंक देता था. When I commented on it, he shuffles his feet and says nothing. मीन्स मैंने उसमें थोड़ी सी बात की तो वो इधर उधर घूमने लगा, पैर हिलाने लगा और कुछ बोला नहीं है. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair of his life. और उस पे एक तीसरा बच्चा था, वो बोला जिसके पास कभी भी लाइफ में एक पैर मीन्स दोनों पैर में एक जैसे जूते हो ऐसा कभी नहीं बना. एंड ही सेड आई वांट शूज़, मुझे शूज़ चाहिए. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स. मीन्स नरेटर सेड कि मैं जब ट्रैवलिंग करता हूँ मीन्स तब तक मैंने बहुत बच्चों को ऐसे बेयर फुट से वॉकिंग करते देखा है, चाहे वो सिटीज़ हो, विलेज रोड. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट. मीन्स वो मनी की लायक नहीं, मीन्स मनी कम नहीं होती उनके लिए, बट वो उनकी जो ट्रेडिशन हो गई है अब एक कि बेयर फुट से चलते, इज़ वन एक्सप्लेनेशन. वो एक ही एक्सप्लेनेशन होता था कि नहीं उनकी अब एक आदत हो गई है. आई वंडर if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मीन्स मुझे आश्चर्य होता था कि अगर यही कोई एक रीज़न होता है एक्सप्लेन करने की कि नहीं हमें अब ये ट्रेडिशन हो गई कि ये उनकी जो पॉवर्टी है वो उसे छुपाने की, ये बस वही रीज़न है, वही एक्सक्यूज़ है. आई रिमेंबर स्टोरी मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी. मीन्स इस नरेटर से कि मुझे याद है कि स्टोरी मैन, आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, कि उडीपी एक प्लेस है, वहाँ से कोई एक पर्सन जिन्होंने मुझे स्टोरी कही थी वो मुझे याद है. एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट. और क्या था कि एज अ यंग बॉय होता है, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल में जाता था. पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल जो कहाँ था, ओल्ड टेम्पल के नियर बाय, वेयर हिज फादर वॉज विस, और वो टेम्पल जहाँ पे उसका फादर क्या थे, प्रिस्ट मीन्स पुजारी थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़. और वो ही वुड स्टॉप ब्रीफली, तो वो जब स्कूल जाता था तो वो टेम्पल वहाँ थोड़ी देर के टाइम के लिए वो खड़ा रहता था. एंड द टेम्पल एंड प्रे फॉर द पेयर ऑफ शूज़, और वो शूज़ के लिए प्रे करता था कि मुझे शूज़ मिल जाए. 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in air of. Means
30 years later, आफ्टर 30 years, उस बात को 30 years हो चुके, आई विजिटेड हिज टाउन, और उसकी जो टाउन था वहाँ विजिट की मैंने, एंड द टेम्पल, वो टेम्पल की विजिट की, विच वॉज नाउ ड्राउन इन एयर ऑफ डेंसोलेशन। मीन्स अब वो कैसा हो गया था, विच वॉज नाउ ड्राउन इन एयर, मीन्स वो जैसे एयर में ख़त्म हो गया वैसे ख़त्म हो गया था, वैसे मीन्स डिसोलेशन वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा। इन द बैक यार्ड वे लीव द न्यू प्रिस्ट, मीन्स वो सारी चीज़ें अब वो ख़त्म हो गई थी, कुछ था नहीं। एंड इन द बैक यार्ड वेयर लीव द न्यू प्रिस्ट, अब वो नया प्रिस्ट वहाँ रह रहे थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहाँ पे रेड कलर एंड वाइट प्लास्टिक कलर की चेयर्स थी। A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed. और उस उतने में एक छोटा बच्चा आता है, ड्रेस्ड, वो अच्छे कपड़े पहने हुए थे, कपड़े पर कैसे, ग्रे यूनिफॉर्म था, लाइक स्कूल यूनिफॉर्म था, वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, उसने सॉक्स एंड शूज़ पहने थे, अराइव्ड पेंटिंग, वो भागते हुए आ रहा था, एंड थ्रू ही स्कूल बैग, और अपनी स्कूल बैग उसने फेंक दी थी, कहाँ पे, ऑन फोल्डिंग बैग, बेड था वहाँ पे फेंक दी थी। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेसेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। ओके, तो जैसे उस बच्चे को मैंने देखा, आई रिमेंबर, मुझे याद आया था, वो याद है कि वो प्रेयर कि कोई अनदर बॉय ने ऐसी कोई प्रेयर की थी जो गॉडेस को, भगवान को, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट, और उसने फाइनली जो शूज़ थे वो मिल गए थे। लेट मी नेवर लूज देम, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, मीन्स लेट मी नेवर लूज देम, मीन्स वो भगवान ने भी सोचा होगा कि ये उस फेथ न खो दे, इसलिए उसे भी दो। तो गॉडेस इज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, लगता है कि गॉडेस ने उनकी जो प्रेयर थी वो ग्रांट कर दी, सैंक्शन कर दी और दे दिया, उसे शूज़ दे दिए। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज, मीन्स जो छोटा बच्चा जो प्रिस्ट का सन था वो शूज़ पहन रहा था। बट मैनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूज, बट मेरे नज़दीक जो मेरे यहाँ वहाँ घूमते हुए लोग जो है, जो नेबरहुड रहते थे, वो अभी भी शू लेस है, उनके पास अभी भी शूज़ नहीं है। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to the Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Now, my acquaintance with the barefoot rag pickers leads to me Simapuri. ये जो चीज़ थी, जो ये इवेंट हुआ था उनके लिए, वो ये बेयर फूट, जो खुले पैर से जो घूम रहे थे रैग पिकर्स, जो भिखारी लग रहे थे, इट्स में ना, ये एक प्लेस पे मुझे लेके जा गया, सीमापुरी। सीमापुरी प्लेस कहाँ, प्लेस इन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, येट वो प्लेस कहाँ था, दिल्ली के नियर बाय, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, यहाँ से बहुत दूर था। मेटाफरिकली मीन्स एक अलंकारिक भाषा में बात करो कि वो सच में दूर। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1970, मीन्स यहाँ वो लोग रहते थे जो बांग्लादेश से 1971 में से यहाँ से भाग के आए थे। साहेब्स फैमिली इज़ अमंग देम, और साहेब आलम जो बच्चा था उसकी फैमिली भी उसमें एक थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज़, मीन्स सीमापुरी एक वाइल्डरनेस प्लेस था, मीन्स वाइल्ड मीन्स जंगली विस्तार था, और अभी भी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, बट वो अभी खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मर्ड विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड tarpaulin, devoid of sewage, drainage of running water, live 10,000 rag pickers, मीन्स सीमापुरी कैसा प्लेस था, वाइल्डनेस में जंगली विस्तार था, इसलिए अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, वो खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स वो कहाँ क्या से, मतलब फुल ऑफ मड है, विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टेरापिन और टीन के रूफ से बने हुए घर भी है। डिवॉइड ऑफ सेवेज, वहाँ पे सेवेजेस है। ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर, रिवर्स है, वाटर है। लिव 10,000, और वहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000 ड्रैग पिकर्स, ये लोग इतने लोग रह रहे हैं।
दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, और ये लोग यहाँ 30 ईयर्स से रह रहे पिछले, विदाउट एनी आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी नहीं है उनके पास, कोई सिटीजनशिप नहीं है उनके पास, विदाउट परमिट्स, और न कोई परमिशन है यहाँ रहने की, बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन। बस जनरली क्या था, राशन कार्ड था उनके पास जिसमें से जिनमें उनके नाम थे, ऑन वोटर लिस्ट में भी नाम थे, और वो जस्ट वो ग्रेन मीन्स उनकी जो खाने पीने की चीज़ें थी वो मिलती थी उनको। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, मीन्स फूड इम्पोर्टेंट है, आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आइडेंटिटी खाना नहीं दी थी, फूड से खाना होता है, तब सर्वाइव कर सकते थे, सफरिंग कर सकते हैं। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. जब वो वहाँ गए, नरेटर से वहाँ पे जो वुमेन थी, जो उनको पूछा क्या कि वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल, कि उन्होंने अपने जो ब्यूटीफुल लैंड थे, जो घर थे, जो ग्रीन फील्ड थे, जो रिवर्स थी, वो छोड़ के क्यों चले आए। तब उन्होंने जो वो कैसी जो टूटी हुई साड़ीज़ में वो ग्रुप था वुमन का, उन्होंने क्या आंसर दिया, दैट इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, कि एंड ऑफ द डे अगर हमारी फैमिली को हम खाना नहीं खिला सकते, हमारे बच्चे को खाना नहीं खिला सकते, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग, और स्टमक में बिना पेन हम सो सकते हैं, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स ऑफ द, तो हम यहाँ अच्छे हैं देन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, जो फील्ड जो हमें ग्रेन नहीं दे सकता उससे बेटर कि हम यहाँ हैं, इट इज़ बेटर फॉर अस। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Means जहाँ जहाँ उनको लगता था, whenever they find food, जहाँ जहाँ उनको फूड मिलता था, they pitch their tents, वहाँ अपने टेंट लगा के वहाँ रह जाते थे, and become transit home, और वहाँ वो अब टेंट उनके होम बन गए थे। कैसे हो, जो घूमते फिरते घर बन गए। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, जो उनके बच्चे थे वहाँ बड़े होते थे, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइव, और वो भी जैसे बड़े होते थे वो पार्टनर हो जाते थे सर्वाइव करने में, सफरिंग में साथ होते थे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन सीमापुरी मीन्स रैग पैकिंग, और जो बच्चे जो सर्वाइवल होता था सीमापुरी में मीन्स रैग पैकिंग वहाँ पे, दो थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइनेंस, मीन्स बहुत साल हो गए थे, अब धीरे धीरे अब वो एक आर्ट आ गई थी जीने की। ऐसे गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, अब ये गार्बेज था उनके लिए अब गोल्ड था। इट इज़ देयर डेली ब्रीड, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child is even more. अब ये ही उनके लिए गोल्ड है, सोना है, पैसा। इट इज़ द डेली ब्रीड, ये उनका डेली का ब्रीड मीन्स खाना है, फूड है। रूफ ओवर देयर हेड्स, ये उनके लिए अब रूफ हो चुका है, जो उन्होंने बनाया था वही। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, अगर वो रूफ लीक हो रहा है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, तो वो भी हम उनके लिए थोड़ा सा अच्छा है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब से sometime कि मुझे पैसे मिलते हैं, इवन 10 रुपये की नोट मुझे मिल जाती है। या हिज आइज लाइटिंग, जैसे वो 10 रुपीज़ की बात होती थी उसकी आँख चमकने लगी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrambling, for there is a hope of finding more. मीन्स अगर आप ये गार्बेज में से ये अगर सिल्वर कॉइन भी आपको मिल गया, यू डोंट स्टॉप स्काउटिंग, तो आप ढूंढने से आप मना नहीं करते, वो आप धीरे धीरे उसे पूरा और एक होप के साथ कि अगर ज़्यादा हमें मिल जाए, तो ये गार्बेज में से गोल्ड फाइंड करना या सिल्वर
अगर सिल्वर मिल गया, गोल्ड मिल गया, तो वो फाइंड करते गए तो कुछ नया मिलता है. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. और ये गार्बेज उनके बच्चों के लिए अलग था, और चिल्ड्रन और उनके पेरेंट के लिए भी अलग था कि ये गार्बेज उनके एक के लिए फूड है, एक के लिए कुछ निकालना है. फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ अ रैप्ड इन वंडर. मीन्स चिल्ड्रन के लिए क्या था कि ये कुछ रैप किया हुआ है. फॉर एल्डर्स इट मीन्स सर्वाइवल. और बड़ों के लिए क्या था, एक सर्वाइवल था. वन विंटर morning, I see Sahib standing by the fenced gate of a neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. Means one on winter morning पे मैंने साहिब को खड़ा होते देखा था. फेंस थी, जो वेल थी फेंसिंग की, जो गेट था वहाँ से, तो नेबरहुड क्लब जो नियर बाई क्लब था, वहाँ टू यंग पर्सन जो वाइट ड्रेस में थे एंड टेनिस खेल रहे थे, उन्हें देख रहा था. आई लाइक द गेम एंड ही सेड आई लाइक द, मुझे ये गेम पसंद है. कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द, सो बिहाइंड जो फेंस थी उससे पीछे वो देख रहा था. आई गो टू इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड. ही सेड कि मैं अंदर गया था, कोई इधर उधर था नहीं. द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग. एंड गेट कीपर था, उसने मुझे ये यूज़ करने दिया था. Okay, dear students, today we stop here. So, from next paragraph, we will learn in next lecture. Okay, till then, इतनी स्टोरी याद रखना. ओके, अगर क्वेश्चन आंसर इसमें से जो आए वो भी आप अच्छे से लिख सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. If you have any query regarding this or any previous lectures, you can contact me, you can ask me.